لیکن کیا وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ایجنسیاں ہیں یا پولیس ہے یا دیگر ایجنسیاں ہیں وہ تعاون نہیں کر رہی کہ جو ابھی تک بازیاب نہیں ہوا؟ جو گراویٹی پارا کی تیلی ہے چمبا جوڑ کریں یہ جو سلسلہ ہے آپ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں. سریاب اس کا ہے، سریاب کے لوگ ان کے ہیں جن کے جو ان کا کام کرے گا، جو ان کے بے روزگار بچوں کو روزگار دے گا، جو وہاں پہ صحت کی سہولیات فراہم کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ کریوں بیدار آپ کی خدمت میں. ناظرین، آج ہم بلوچستان کی حکومت کی کارکردگی کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. اور چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے ساتھ باقی پارٹیاں بھی شامل ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک کمزور حکومت ہے اس وقت. وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو اغوا ہو چکا ہے، تقریباً 15 سے 16-17 دن ہو گئے، ابھی تک بازیاب نہیں ہوا. وجوہات کیا تھی؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے کیونکہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پھر مرکز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بھی حکومت ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے بلوچستان کے صوبائی رہنما پیپلز پارٹی کے میر محمد اکرم محمودی صاحب کو زحمت دی ہے. اکرم جان، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. شکریہ سر. آپ کی حکومت کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کمزور ترین حکومت ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، امن و امان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ پہلے آپ کا کہ آپ ماشاء اللہ کہ تعمیری تنقید فرماتے ہیں گورنمنٹ پہ اور اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں اس کے بارے میں. گزارش یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کس حوالے سے اس کو کمزور بتا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے موجودہ گورنمنٹ کو چیلنجز ہیں اور جس طرح سے حالات صوبے کے خراب ہیں، ان کو ٹھیک کرنے پہ جس طرح سے گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، ایک کوشش کر رہی ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، لوگ پرامن طریقے سے آئیں. اور کرائم تو دیکھیں امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کے حالات ہیں، لیکن وہاں پہ میڈیا اس طرح سے ان کو وہ نہیں کرتا ہے. یہاں میڈیا کی آزادی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے بڑے بڑے ایشو اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حوصلہ تو نہیں آنا چاہیے. ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کو بہتر بنایا جائے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں. میں آپ کو چھوٹا سا اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، سریاب کی. ہے تو بڑا حلقہ ہے، لیکن حلقہ جو ہے 44، حلقہ 40، حلقہ جو ہے 46، اور یہ ساری جو 47 جو بھی ہیں جو سریاب کے ہیں، اس میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری کارکردگی کیا رہی ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی وہاں کے حلقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 6 مہینے کے جو پیریڈ گزرا ہے، ہم نے 6 مہینے میں وہاں پہ بہت سارے علاقوں میں جو ہے سڑکوں کا کام، ٹف ٹائر کا کام، سیوریج کا کام، پانی کا کام، بجلی کا کام، ٹرانسفارمر وغیرہ، اور تمام اسکولوں میں جو ہے سولر سسٹم لگانے کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت سارے کام لوگوں کے ہوئے ہیں. اور آپ کو یقین کریں کہ میں بالکل گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس بنیاد پہ کسی کو ترجیح نہیں دی ہے کہ وہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی کا رہتا ہے، وہاں کوئی جو ہے مسلم لیگ کا کوئی رہتا ہے، ان کی گلیوں کو جو ہے ترجیح دی ہے، بلکہ ہم نے ان گلیوں کو ترجیح دی ہے جن کو ہر دور میں اگنور کیا گیا تھا. ہم نے ان اسٹریٹ کو جو ہے تعمیر کیا ہے اس مختصر سے ٹائم میں کہ جہاں پہ کبھی کوئی ایم پی اے گیا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایم پی اے ہے ہمارے علاقے میں. ماضی کے لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ بڑی جو ہے ترقی لائی ہے، تو ہم نے جہاں پہ کام کیا ہے تو وہ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ ان کی جو ہے کتنی خوشحالی ہوئی ہے، ان کی پراپرٹی کی ویلیو کتنی بڑی ہے، ان کے مسائل کتنے کم ہوئے ہیں. ایک
दूसरी बात ये कि आपको भी इल्म है कि आप लोगों को भी इल्म है कि हमारी गवर्नमेंट जब बनी तो बहुत सारा टाइम हमारा सीएम की सिलेक्शन में लगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया उसमें। जब सीएम आया तो फिर काबीना में बहुत सारा टाइम लगा उसको तरतीब देने में, और जब काबीना आया तो फिर केसों का सामना करना पड़ा। जो मुखालिफ सियासी पार्टीज जो हैं वो गए हुए थे, वो प्रोसेस होते रहे, पेशियाँ वो करते रहे, और वो सारी चीज़ें प्रोसेस होते होते हम वहाँ पर पहुँचे कि जहाँ पर जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमें यहाँ से अलकचवाली से जो है हमारे MP जो है वो जो है हार गए वहाँ से। फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अलकचवालीज के जो MP हमारे हैं सरदार उबैद गुरगेज साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सुरखरू होकर वापस आए। अभी ये चंद 1-2 दिन की बात है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मुखालफिन, सियासी मुखालफिन, स्पेशली मैं कहूँगा कि उन लोगों से जो हमारे हल्के में दावा कर रहे थे कि हम टॉपर हैं, उन्होंने देखें इस तरह की हरकतें की कि जब हाई कोर्ट से जब फैसला आया और हमारे बहुत सारी चीज़ों पे हमें जो है नाअहल करार दे दिया गया हमारे इस MP को, तो वहाँ पे डोर बजाया गया और बहुत सारी हमारे MP पे जो है तंज किया गया, तनकीद किया गया उस पर, और हमने उन तमाम रवैयों को हमने बर्दाश्त किया और हम खामोशी से इज्जत के साथ वहाँ से निकले। लेकिन क्या कुछ नहीं छोड़ा हमारे मुखालफिन ने वहाँ पे। क्या यही रवायत है? और हमारी रवायत क्या है कि हम जब सुप्रीम कोर्ट से जीते तो हमने जाकर जो है अपने मुखालफिन को जाके गले मिलने की कोशिश की, और हम नहीं समझते हैं कि इस तरह के हरकत से आप जो हैं आपका कद बुलंद होगा। हमारे किसी भी बस पार्टी ने उसके बावजूद कि हमारे ऊपर तनकीद भी हो रहा था, हमने उसका जवाब नहीं दिया। हमने लोगों की तरक्की की काम किए। हम ये वो लोग हैं हमारे सियासी मुखालफिन जो कि तरक्याती कामों को रुकवाने के लिए जाकर इलेक्शन कमीशन में जो है दरख्वास्त दी कि इनके जो है ये जो तरक्याती काम लोगों के हो रहे हैं इनको बंद किया जाए। ये कैसे दावे करते हैं? ये किस तरह के लोग हैं? तरक्की तो अगर उबैद गुरगेज साहब अगर कर रहे हैं, वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो सरेआम में हो रही है, वो कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं हो रहा था। जो उसको मखसूस एक जो है बजट 80 करोड़ रुपए का जो दिया गया था, जिसमें हमने 20 करोड़ रुपए वहाँ पे जो है सरेआम एक हॉस्पिटल में दिए और तकरीबन 20 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफार्मर्स के बजट में दिए और 40 करोड़ रुपए से जो हो सकता था वो डेवलपमेंट हमने वहाँ पे की लोगों के लिए। अब उसको भी आप रोक रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी जाना चाहते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए और ये तरक्की नहीं होनी चाहिए, ये नालियाँ नहीं। ये कैसे खैर ख्वाह लोगों के वहाँ पे बैठे हुए हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं। भाई डेवलपमेंट हो रहा है वो लोगों के लिए हो रहा है, आपके लोगों के लिए। अगर आप समझते हैं कि हल्का मेरा है, वो समझ रहे हैं कि हल्का हमारा है। मैं तो पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ आपके एक प्रोग्राम में कि हल्का उसका है, सरेआब उसका है, सरेआब के लोग उनके हैं जिनके जो उनका काम करेगा, जो उनके बेरोजगार बच्चों को रोजगार देगा, जो वहाँ पे सेहत की सहूलियत फराहम करेगा, जो पानी और गैस के इश्यूज को जो है एड्रेस करेगा, सफाई की सूरत में। अब मैं आपको बताऊं कि सफाई की सूरत में हर 4 रोज के बाद हमने सरेआब अपने हलकों को हमने फोकस किया हुआ है कि वहाँ पे जो है कॉरपोरेशन की जो है टीम वहाँ पे जा रहा है और तमाम चीज़ों को साफ सुथरा जो है डेली बेसिस पे हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं वहाँ पे हम काम। अब हम चेंज लोग चाहते हैं। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं कि आपकी कौमी बेस पे, आपके लिसानी बेस पे जो है लोग आपको जो चाहेंगे, वो गलतफहमी से लोगों को मैं समझता हूँ कि निकलना चाहिए। अब लोग काम करना चाहते हैं। उबैद वहाँ पर एक बेहतरीन जो है वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वहाँ की नुमाइंदगी कर रहा है सरेआब 44 की। वो अहलियत रखता है, वो एक नौजवान है, उसके अंदर ये सलाहियत है। अच्छा, इसमें और गुरगेज साहब तो दोबारा आ गए, वो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन एक और सीट और जो जतक साहब का है जी, तो उसकी क्या सूरत है? देखिए जतक साहब जब तक थे, अब तो री इलेक्शन की तरफ चले गए हैं, रीपोलिंग की तरफ जो मखसूस हल्के हैं वहाँ पे रीपोलिंग होना है। इंशाल्लाह वो सीट भी हमारी है, हम उसको जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। अगर उसकी कारकर्दगी की आप हाजी अली मदद की बात करेंगे तो
हाजी अली मदद में एक शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे गलियों की तामीर, उनकी सेवरेज, उनके पानी, उनकी दीगर इश्यूज को उसने जो है इस 6 महीने के अंदर जो है तामीर करके बता दिया। और रिकॉर्ड है, और हमारा रिकॉर्ड ये है कि हल्का 44 में हमने 1 महीने की बुनियाद पे, जबकि वो एफडीए भी नहीं था, लेकिन उसके डेवलपमेंट के काम वहाँ पे जो सेंक्शन हो चुके थे सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, उसको चीफ सेक्रेटरी और जो है वज़ीर आला खुद देख रहे थे, उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट की और आलिमत ने की। और उसके बाद हमारा जो 40 सड़कें का है सरदार समद गोरगेज, उसने अपने हल्के में काम किए हैं। उसके बावजूद कि वहाँ बहुत सारी सड़कें, अभी हम उधर भी जा रहे हैं, हम बरूरी को एड्रेस कर रहे हैं, हम ये तो तरक्याती काम हो गए। अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हो। देखिए, अमन अमान की सूरत हाल इतनी बुरी भी नहीं है जितनी बयान किया जा रहा है। जो ग्राविटी पारा के तीली चंबा जोड़ कर नहीं, ये जो सिलसिला है, आप एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, और हद से ज्यादा कि भाई अगर कहाँ पे बच्चे इस तरह के वाक़यात नहीं हुए हैं क्राइम के, मैं उस बच्चे की फैमिली के साथ तो बिल्कुल हमदर्दी है, हम उसके दर्द में बराबर खुद को महसूस करते हैं। मैं भी औलाद वाला हूँ, आप भी औलाद वाले हैं। इतने मासूम के साथ अगर जो लेकर गए हैं, यकीनन उसमें रियासत को काम करने की ज़रूरत है, और फौरी उसको जो है, अभी तो उस दिन मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि पहले जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समोतो नोटिस लेते थे, लेकिन अलहमदुलिल्लाह उस प्रोग्राम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जो है समोतो नोटिस ले लिया है, और इंशाल्लाह ये बच्चा जो है खैर आफियत से अपने वालिदैन तक पहुँचेगा। हमारी दुआएं उसके साथ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ हैं, रियासत के साथ है। वज़ीर आला साहब ने खुद सरफराज ने जाके जो है इस इशू को एड्रेस किया है, इस पे बात की है कि मैं खुद औलाद वाला हूँ, वो मेरा उनका बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है। उस पर काम हो रहा है। यकीनन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो बहुत ही शातिर किस्म के लोग हैं, बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं, जिन्होंने उस मासूम को अपने पास अभी तक रखा हुआ है। अल्लाह करेगा इस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे कि अल्लाह ताला उस मासूम को जो है बखैरी आफियत वापस लाएगा, और हम और आप इस पे इंशाल्लाह इस इशू को बेहतर तरीके से हल करेंगे। लेकिन क्या वज़ीर आला के साथ जो एजेंसियां हैं या पुलिस है या जो दीगर एजेंसियां हैं, तो ताउन नहीं कर रही कि जो अभी तक बाज़ियाब नहीं हुआ? देखिए, नेटवर्किंग का थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है कि कैमरे वगैरह के जो हमने किया था यहाँ पे जो शहर में लगे हुए हैं, उनके जो है कुछ कैमरे ख़राब होने की बात है। ये गफलत है, यकीनन ऐसे गफलत का नताइज ऐसे ही निकलते हैं कि जब हम क्राइम हो जाता है, फिर आपकी शादी में कोई जो है मुश्किलात पेश आ जाते हैं। उसका भी नोटिस दिया गया है, वो उस पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम इस वक्त दुआ गो हैं। अच्छा, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त की जो कारकर्दगी आपने बयान की, बास काम तो जो हमारे मेट्रोपॉलिटन के हैं या कारपोरेशन के हैं वो काम है, कानून साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने क्या किया? देखिए, अभी चीज़ें सेट हो रही थी कि हमारे एमपी का नोटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया। अब वो अगर आज अगर जाके असम्बली संभालिए, कानून कौन सी कानून जो आप चाहते हैं कि जो नहीं बना हुआ, मैं समझता हूँ कानून बनाने तो अपनी जगह पर है, कानून जो बने हुए हैं इन पर अमल दरामद की भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। एक तो उस कानून पे अमल दरामद की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह कि कानून की आगाही हर आदमी के पास होनी चाहिए, हर शख्स के पास होनी है कि कहीं पर आपकी कोई तलाशी हो रही है, कोई सर्च वारंट है, कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसकी आगाही ज़रूरी है। हम समझते हैं कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पे लोगों को आप वकला को बुला के अपने प्रोग्राम में बुलाएं, और उनसे कम से कम ये कानून की अमलदारी के हवाले से और कानून के शऊर के हवाले से कि मेरा अख्तियार क्या है, और देखकर जो एक यूनिफॉर्म पहन के हमें जो है आपको हमें अगर सर्च करता है या इन्वेस्टिगेट करता है तो उसमें उसके पावर्स क्या हैं, इसकी आगाही की भी ज़रूरत है। अब चूँकि मामला कुछ इस किस्म का है कि कानून एक तरफ वन साइडेड है, बहुत सारी चीज़ों में गफलत बरत रही है, और फिर आपको ये भी पता है कि बहुत सारी इंक्वायरीज में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी ऐसे लोगों के खिलाफ हो रही हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे दीगर किसी अदारे में, चाहे लिविज में। उस पर अदारे, हमारे जजेस, अदालतें हमारी काम कर रही हैं, उनको बहुत सारे नोटिस मिले हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आगाही नहीं है कानून के हवाले से। अल्लाह करे कि लोगों को कानून के हवाले से आगाही हो और बलूचिस्तान की जो मसाइल हैं वो हल हो, क्योंकि बलूचिस्तान की मसाइल हल होने से ही तरक्की की जानिब गामजन हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर अकरम बंगुरजी साहब। नाज़रीन, आपने मीर मोहम्मद अकरम बंगुरजी साहब की बातें सुनी, जो सूबाई रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने
مختصر سے عرصے میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی. اللہ کرے کہ یہی سلسلہ آگے جائے، عوام کو سہولیات ملے، خوشحالی ملے، صوبہ ترقی کرے اور ملک ترقی کرے. کہیں بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.